السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرام و آلہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین اور سامعات، پچھلے بیان یعنی دوسرے حصے میں آپ نے سنا کہ کیسے حضرت امام حسین کو کوفہ والوں نے خط بھیج کر اور ہزاروں قاصد بھیج کر کربلا بلایا، اور پھر صبح سے شام تک اپنی چھتوں پر چڑھ کر امام حسین کی راہ دیکھتے رہے، اور پھر حضرت امام حسین کا استقبال چمکتی ہوئی تلواروں سے کیا، اور پھر ان پر اور معصوم بچوں پر ان ظالموں نے پانی بھی بند کر دیا، اور پھر امام علی مقام نے 3 خواہشیں پیش کی اور فرمایا ابن زیاد تک میری یہ خواہشیں پہنچا دو، اور وہ خواہشیں کیا تھیں وہ میں دوسرے حصے میں بیان کر چکی ہوں، اور وہ خواہشیں امام حسین نے نہ ہی ڈر کی وجہ سے پیش کی اور نہ ہی جان کے خطرے کی وجہ سے، بلکہ آپ نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، امن اور سلامتی کے دامن میں داغ نہ لگے اور لوگوں کو کہنے کا موقع نہ ملے، امن اور سلامتی کے اس فرشتے پر جنگ کو دعوت دینے کا الزام نہ لگایا جا سکے، اور اگر اس اللہ کے شیر کو موت کا خوف ہوتا اور جان جانے کا ڈر ہوتا تو وہ اپنے نانا مصطفیٰ کا روضہ اقدس چھوڑ کر مدینے سے نکلتا ہی کیوں؟ اگر اس کو اپنی اور اپنے بچوں کی جان عزیز ہوتی تو وہ اللہ کے گھر کو سلام کر کے مکے سے کوچ ہی کیوں کرتا؟ وہ تو نانا مصطفیٰ کی اس حدیث پاک پر عمل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا کہ الجنت تحت ولا السجود، کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے، اور وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق دینے کے لیے میدان کرب و بلا میں آیا تھا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ شہزادہ کونین کی یہ تینوں خواہشیں امر شاد نے قاصد کے ذریعے ابن زیاد تک پہنچا دی، مگر ابن زیاد کا پتھر دل نرم نہ ہو سکا۔ اس نے جواب میں امر شاد کو لکھا کہ حسین ابن علی پہلے یزید کی بیعت قبول کرے، پھر دوسرے معاملات پر غور کیا جائے گا۔ میں نے تمہیں حسین کا سر لینے کے لیے بھیجا تھا، ان سے صلح کرانے کے لیے نہیں۔ خبردار حسین ابن علی سے اس وقت تک کوئی رعایت نہ کی جائے جب تک وہ یزید کی بیعت قبول نہ کرے، اور اگر تم نے میرے اس حکم کی نافرمانی کی تو ہر قسم کے انعام و اکرام سے محروم کر دیے جاؤ گے، اور تمہیں تمہارے منصب سے بھی دور کر دیا جائے گا۔ محرم الحرام کی 7 تاریخ کو شمر بن جوشن ابن زیاد کا دوسرا حکم لے کر امر شاد کے پاس پہنچا کہ نہر فرات پر فوراً قبضہ کر لیا جائے اور حسین ابن علی کے خیموں میں پانی کی ایک بوند بھی جانے نہ دی جائے۔ چنانچہ ان بے رحموں اور ظالموں نے فوج کا ایک دستہ بھیج کر نہر فرات پر پوری طرح سے قبضہ کر لیا۔ پانی بند کر دینے کے بعد بھی امر شاد پیام پر پیام اور قاصد پر قاصد بھیجتا رہا کہ اب بھی وقت ہے، یزید کی بیعت کا اقرار کر لو ورنہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر وہ راکب دوس رسول ہر بار یہی جواب دیتا کہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، لیکن ایک فاسق اور فاجر کی بیعت کبھی قبول نہیں کروں گا۔ جب صلح کی کوئی صورت نہ نکل سکی اور حضرت امام نے سمجھ لیا کہ اب جنگ ہو کر ہی رہے گی تو آپ اپنی وفادار اور غمگسار بیوی حضرت شہربانو کے پاس گئے اور فرمایا شہربانو، میں جانتا ہوں کہ تم ناصر و عادل کی پوتی ہو اور نامور اور پرسکبہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہو، ریشمی بستروں پر سونے والی اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی پینے والی شہزادی ہو، ایران کی شہزادی ہو، مگر تم نے میرے ساتھ جس حوصلے اور صبر و سکون سے زندگی بسر کی ہے میں اس کا شکر گزار ہوں، اور میرے گھر میں تم نے جس ذوق و شوق کے ساتھ خدمات انجام دی ہے میں ان کا ممنون ہوں، لیکن عرب والوں نے تمہاری قدر نہیں کی، ان ظالموں نے تمہیں یہ دن بھی دکھا دیا کہ آج تم اور تمہارے بچے پانی کے ایک قطرے کو ترس رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ تم پر یہ مصیبت کی راتیں اور دکھوں کے دن میری ہی وجہ سے ہیں، اور اب یہ حالات دھیرے دھیرے بگڑتے ہی جا رہے اور یہ
पता नहीं कि किस वक्त दुश्मनों की तरफ से जंग का ऐलान हो जाए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने बच्चों को साथ लेकर ईरान चली जाओ। जहां तुम चाहती हो वहां चली जाओ और इसका इंतजाम मैं खुद कर देता हूँ। मगर कुर्बान जाए इमाम हुसैन की उस गमगुसार बीवी पर के कदमों की खाक पर फिदा हो जाए इमाम हुसैन की उस गमगुसार बीवी पर के जिन्होंने उस आखिरी वक्त में भी अपने शौहर का साथ न छोड़ा, अपने बच्चों की कुर्बानी देकर अपने शौहर की आन बचाई और जो दस्ते करबला के तपते हुए रेगिस्तान में गर्मी की शिद्दत में भूख और प्यास बर्दाश्त करके वफादार बीवी होने का हक अदा कर गई। इमाम अली मकाम की इस गुफ्तगू से बीवी शहरबानों पर रिक्कत तारी हो गई और शौहर के कदमों पर गिर गई और अर्ज की, ऐ मेरे आका हुसैन, खुदा के लिए आखिरी वक्त मुझे अपने दरवाजे से धक्का न दो, अपने कदमों से दूर न करो, बल्कि गुलशने इस्लाम की आबियारी के लिए मुझे भी अपने बच्चों का खून पेश करने की इजाजत दे दो, वरना दुनिया की औरतें मुझ पर तांज करेंगी। आखिर बेगानी थी, इसीलिए तो मुश्किल में अपने शौहर का साथ छोड़ गई। ए आली मकाम आका, ये तो ठीक है कि मैं नाशिर व आदिल की पोती हूँ, ये भी दुरुस्त है कि शाही महलों में रहने वाली ईरान की मलका हूँ, मगर आज मैं आपके घर की लौंडी हूँ, खानदान नबूवत की कनीज हूँ, बीबी ज़ैनब की खादिमा हूँ। या हुसैन, मुझ गरीब पर रहम करो, मुझ बेसहारा पर तरस खाओ और मुझे अपने कदमों से दूर न करो। अगर आज मैं आपको छोड़कर चली गई तो कयामत के दिन नाना मुस्तफा को क्या मुंह दिखाऊंगी, शेर खुदा के सामने किस तरह जाऊंगी, हजरत फातिमा को क्या जवाब दूंगी। मैं अपने खिदमात का सिला, अपने सब्र शुक्र का बदला, अपनी कुर्बानी का बदला अरब वालों से नहीं मांगती, अजम वालों से नहीं मांगती, मक्का वालों से नहीं तलब करती, मदीना वालों के सामने हाथ नहीं फैलाती, बल्कि इस वफादारी और जानिशारी का बदला कयामत के दिन नाना मुस्तफा से मिलेगा, अली शेर खुदा से मिलेगा, खातून जन्नत से लूंगी। जब हश्र के उस अरशाए दारोगीर में जब हर तरफ नफ्सी नफ्सी की पुकार हो, उस दिन मेरे सर पर बीबी फातिमा की चादर का साया होगा, मेरे हाथों में शेर खुदा का दामन होगा और निगाहों में हुस्न मुस्तफा के जलवे होंगे। कौन शहरवानों जो हजरत उम्र के दौरे खिलाफत में ईरान की फतह के बाद माले गनीमत में एक कनीज की हैसियत से मदीना आई थी, और मदीना मुनव्वरा के हर मुसलमान की ये ख्वाहिश थी कि शहरवानों मेरे निकाह में आए। यहाँ तक कि हजरत उम्र के बेटे हजरत अब्दुल्लाह की भी ये तमन्ना थी, मगर कुर्बान जाए हजरत उम्र की उस दूर रस निगाह पर और सदके जाए उनकी नुक्ता सनास मिजाज के जब शहरवानों की बारी आई तो हजरत उमर ने फरमाया कि आज से पहले शहरवानों दुनिया की शहजादी थी, मगर आज मैं उसको दीन की शहजादी बनाता हूँ और शहरवानों का निकाह खलीफाए इस्लाम हजरत इमाम हुसैन से करवा दिया। फिर इमाम हुसैन की ही मजलिस का असर था, जिगर गोशाए बुतूल की ही इत्तिका का ही नतीजा था कि शहरबानों की जिंदगी में ऐसा इनकलाब आया, चंद दिनों के अंदर ही वो सही मायनों में वो दीन की शहजादी बन गई और ईरान की सुनहरी तख्त पर बैठकर हुकूमत करने वाली मलका मदीने में शुक्र दुर्वैशी की चादर ओढ़कर और खजूर की फटी हुई चटाई पर बैठकर बारगाह रब्बुल इज्जत में सर्व सुजूद होकर खुशियां महसूस करती। सोने और चांदी के बर्तनों में पानी पीने वाली शहजादी आज मदीने में मिट्टी के एक प्याले में आब जमजम पीकर मुस्कुराती है और ईरान की लाखों अमीरजादियों के दिलों पर अपने आंखों के जुम्बिश से लर्जा पैदा कर देने वाली बल्का आज मदीने में खानदान नबूवत की कनीज बनकर फख्र महसूस करती है। हजरत इमाम हुसैन के दिल पर बीबी शहरबानों की दर्द भरी गुफ्तगू से रिक्कत तारी हो गई, आंखों से अश्क जारी हो गए। इमाम हुसैन ने इशा की नमाज के बाद आपके साथ जितने भी लोग गए थे उन सबको बुलाया, सबके साथ बैठे और फिर फरमाया कि
आप लोग जो मेरे साथ आए हो, आप सभी जानते हैं कि हम किस मुसीबत का सामना कर रहे हैं और जो सुबह होगी, अगली सुबह हमें जंग करनी है और हमें अपनी जानों से हाथ धोना पड़ेगा, हमें अपनी जान खुदा की राह में कुर्बान करनी होगी। लेकिन इसके लिए मैं आपको मजबूर नहीं करता। आप में से जो कोई भी जाना चाहे वो बाखुशी जा सकते हैं, मेरे तरफ से कोई रोक टोक नहीं। आप सभी को इजाजत है। उन्हें जंग मेरे साथ करनी है, उनकी दुश्मनी मेरे साथ है, वो मेरे खून के प्यासे हैं। आपको अपनी जानें देने की कोई जरूरत नहीं, आप सभी को इजाजत है। अगर आप जाना चाहें तो मैं अभी चिराग बुझा देता हूँ और चिराग जब बुझ जाए तो अंधेरे में आप लोग खामोशी के साथ निकल जाएं। मैं किसी पर किसी तरह का जोर और जबरदस्ती नहीं करता। इमाम अली मकाम की ये गुफ्तगू सुनकर के पूरे खैमे में अश्कों की लड़ी जारी हो गई और हर किसी की सिसकियां बन गईं। कुछ देर जब गुजर गया तो इमाम अली मकाम ने दोबारा चिराग जलाया और देखते हैं जितने लोग मौजूद थे सब के सब बैठे हैं और अपने आंखों से आंसुओं को पोंछ रहे हैं। और सबने फिर कहा, इमाम हुसैन, हमने आपको अपना इमाम माना है और हम आपका साथ अपने खून के आखिरी कतरे तक देंगे। हम कभी आपका साथ छोड़कर नहीं जाएंगे और अगर आज हम आपको छोड़कर यहाँ से चले गए तो फिर कयामत के दिन हम अपने आका मोहम्मद मुस्तफा को कौन सा मुंह दिखाएंगे, उन्हें क्या जवाब देंगे जब मौला अली शेर खुदा हमसे पूछेंगे कि तुमने मेरे हुसैन को मैदान करबला में तन्हा छोड़ दिया, जब बीबी फातिमा हमसे पूछेंगी कि तुमने मेरे लख्ते जिगर को करबला में बेयार और मददगार छोड़ दिया, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। हमें भी कयामत का डर है, हमें भी खुदा का डर है, हम आपका साथ हरगिज नहीं छोड़ेंगे। यहाँ मैं एक बात पेश करूंगी कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जब मुश्किल वक्त आया तो उनकी कौम मनसलवा खाने वाली लड़ने से जवाब दे गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब मुश्किल वक्त आया तो आप पर निसार हो जाने का वादा करने वाले हवारी जवाब दे गए, मगर बाहर मेरे आका हुसैन के साथियों, तुमने निसार होने का हक अदा कर दिया, वफादारी की मिसाल कायम कर दी, किसी को सबक दे गए और ये बता दिया कि वफादारी किसे कहते हैं और यार के खातिर जाने कुर्बान करके रस्म दोस्ती का लाज रख लिया। सैयदा का लाल हर खेमे से ये जवाब लेकर जब वापस आया, सैयदा का लाल हर खेमे में गया, लोगों का हाल पूछने को तो हर तरफ से अल अतस की सदाएं बुलंद हो रही थी, यानी हर कोई प्यास से तड़प रहा था। खेमों में एक कोहराम मचा हुआ था, बूढ़े हाँप रहे थे, जवान तड़प रहे थे, बच्चे बिलक रहे थे, बीबियां आहें भर रही थीं। और फिर फातिमा के लाल ने अपने पूर्णम आंखों से वो दर्दनाक मंजर भी देखा कि बीबी सहरबानों की गोद में चमन इस्तान जहरा का एक फूल जो गर्म लू के थपेड़ों से कुमला चुका था, अपनी माँ की आगोश में प्यास से तंग आकर बिलक रहा था। सहरबानों अपने दामन से उसे अपने लख्ते जिगर को अपने दामन में लिए हुई थी और पंखा झल रही थी। नन्हा सा बच्चा पानी की एक बूंद के लिए मुंह खोलता और फिर प्यासी जुबान निकाल कर माँ को देखता। माँ चाहती कि अपने आंसुओं के चंद कतरे ही बच्चे के हलक में डाल दिए जाएं, मगर बेहोशी के वजह से बच्चे की गर्दन ढलक जाती और माँ फिर अपने जिगर गोशे को अपने कलेजे से लगा लेती। अली का लाडला ये गमनाक मंजर देखकर उनके आंखों में आंसू आ गए। बाहर निकलने ही वाले थे कि पीछे से ठंडी हवा का एक झोंका आया। जब पीछे घूमकर देखा तो बहन के शफ़क़तें देखकर बेताब हो गए। आसमान की तरफ निगाह उठाई और अर्ज की, ऐ मेरे मौला, इम्तिहान बड़ा सख्त है, सब्र की तौफीक अता फरमा। बहन को तसल्ली देकर आगे बढ़े तो शहजादा अली अकबर सामने खड़े थे, जिनके लब खुश्क हो चुके थे, जिनके हलक में कांटे निकल चुके थे, जी घबराया हुआ था और जिस्म कमजोर हो चुका था, मगर 18 साल का नौखेज जवान बातिल के मुकाबले में समाए हक जलाने के लिए अपना खून देने को तैयार था। अपने दिल के टुकड़े को भी हौसला देकर
कर आगे बढ़े कि बहन जैनब के दोनों बच्चे आउल मोहम्मद पांव से लिपट गए, कदमों को बोसा दिया। नवासाए रसूल ने बच्चों को उठाया और नकाहत और कमजोरी की वजह से बड़े मुश्किल से वो खड़े हुए। गर्मी की तपिश से चेहरे झुलस रहे थे, प्यास की शिद्दत से लबों पर पपड़ी जम चुकी थी। शायद मामू जान से पानी के चंद कतरों की भीख मांगते, मगर माँ ने इशारे से समझा दिया कि बेटो खबरदार, हर्फ शिकायत जुबान पर ना आए। सैयदा के जाए हो, हिम्मत से काम लो और मामू का साथ दो। हजरत इमाम पाक अभी बहन के बच्चों को प्यार ही कर रहे थे कि सामने भाई का बेटा हसन का बेटा कासिम गर्दन झुकाए बड़ा और अदब के साथ खड़ा हो गया। कासिम को देखा तो हसन की सूरत आंखों में फिर गई और फिर वो हसन की वो वसीयत याद आ गई कि हुसैन, ये कासिम मेरी अमानत है जो तेरे हवाले है। जिगर गोसाए रसूल ने देखा कि कमजोरी के वजह से कासिम के पांव लड़खड़ा रहे हैं। कासिम को बगल में लिया, फिर आसमान की तरफ देखा और अर्ज की, ऐ मेरे खालिक और मालिक, ऐ खालिक कायनात, आजमाइश बड़ी सख्त है, बड़ी शदीद है, मुझे साबित कदम रखना। या हुसैन तेरे सब्र पर कुर्बान, या शब्बीर तेरे हौसले पर मिसाल, या इमाम तेरे इस्तकलाल को सलाम, या सैयदा तेरे अज़्म पर फिदा कि तूने दिल दहला देने वाले उस दर्दनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा जो दिले इंसान को तो क्या पत्थर को भी टुकड़े टुकड़े कर देता, मगर तेरे पाँव में लग़्ज़िज़ ना आई। कुर्बान जाए इमाम हुसैन पर के उन्होंने अपना पूरा घर बार लुटा दिया, लेकिन मजहब इस्लाम के नाम पर दाग आने न दिया। और जब इमाम हुसैन ने अपने अहले खाना से ये बात कही कि आप सभी लौट जाएं, मैं आपको जंग के लिए मजबूर नहीं करता, लेकिन हर एक उन पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए बेताब था। हर एक जानिशारी का सबूत देने के लिए वहीं पर खड़ा रहा और कोई भी एक कदम पीछे न हटा। उस पुरदर्द नजारे की कैफियत अभी मजलूम करबला पर तारी ही थी कि अम्र साद का कासिद आ पहुंचा और कहा, ए हुसैन इब्ने अली इब्ने जियाद का आखिरी पैगाम आ गया है। अगर हुसैन यजीद की बैत का इकरार करे तो बेहतर, वरना अब उसे मोहलत न दी जाएगी। थोड़े से गौर के बाद आपने फरमाया, अम्र साद से कहो कि नहरे फुराद पर कब्जा करके औलाद फातिमा पर पानी बंद करके तूने जिस गैर इंसानी सलूक का जो सबूत दिया है वो तुम्हारे हक में लानत का वाइस है। और ये क्या सितम है कि तेरा लश्कर, तेरे लश्कर के घोड़े तो पानी पी सकते हैं, मगर नबी की औलाद पानी की एक बूंद को भी तरस रही है। और खानदान नबूवत का ये घराना आज वुजू के बजाय मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ता है। मुझे ये सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये तवक्को न रख के फातिमा का लाल यजीद की बैत कबूल कर लेगा। और आज की रात मुझे मोहलत दे दो ताकि हम बारगाह रब्बुल इज्जत में जी भर के हाजिरी दे लें और अपनी खताओं की माफी मांग लें। कल सुबह हम लड़ने के लिए तैयार हैं। कासिद ने शहजादाए कौनैन का ये पैगाम अम्र साद को पहुंचा दिया। उस जालिम ने लश्करियों से मशवरा लिया और कहा कि अब शाम हो चुकी है, इसलिए हुसैन इब्ने अली की ये बात मान लेनी चाहिए। मगर सिमरे लईम ने कहा कि अगरचे हुसैन इब्ने अली एक छोटी सी जमात लेकर आए हैं, मगर ये उस अल्लाह के शेर का बेटा है जिसकी बहादुरी व सुजाअत का सिक्का जमीन वाले ही नहीं आसमान वाले भी मानते हैं। इसलिए हुसैन इब्ने अली को एक लम्हा के लिए भी मोहलत देनी अच्छी बात नहीं, मगर आज की रात की मोहलत इसलिए देनी चाहिए कि उसका लश्कर प्यास से और कमजोर हो जाए, ताकि कल लड़ने की उनके अंदर ताकत न बाकी रह जाए। मुहर्रम की नवी तारीख का चांद थरथरा रहा था, उसकी सुआएं औलाद फातिमा को शहादत का पैगाम दे रही थी और उसकी किरणों से रोशनी के बजाय हसरत और यास की धारें फूट रही थी। मैदान करबला का एक एक जर्रा अपनी खामोश जुबान से आहो बका कर रहा था। जमीन करबला बारगाहे रिसालत के उस मुकद्दस खेमे से जिसमें औलाद बुतूल जिंदगी की आखिरी रात बसर कर रही थी, तिलावत कलाम पाक की सदाएं सुन रही थी, जिक्र इलाही की आवाजें आ रही थी और
जिस खेमे में अमन और सलामती का फरिश्ता आराम कर रहा था, जिसमें इतरते पैगंबर छिपी हुई थी और जिसमें दीन और ईमान का पैकर आराम कर रहा था, उस खेमे का एक एक टुकड़ा अपने अंदर आखिरी रात बसर करने वाले की जानों की खैर मांग रहा था। चांद डूब गया और करबला की जमीन पर सियाही चादर बिछ गई, हर तरफ अंधेरा छा गया। फातिमा का लखते जिगर उठा, करबला की मिट्टी से तयम्मुम किया और रात के अंधेरे में बारगाह रब्बुल इज्जत में सर्वसुजूद हो गया और अर्ज की, ए मेरे खालिक, ए खालिक के कायनात, ये मेरी जिंदगी और तेरी बंदगी की आखिरी रात है। सुबह जो कुछ होने वाला है वो तू बेहतर जानता है, मगर ये मेरी इल्तिजा कबूल फरमा कि इस इम्तिहान में साबित कदम रखूं, खुशी से अपने बच्चों की कुर्बानी दूं, हंसकर लाशों को उठाऊं, मुस्कुराता हुआ खून को धोऊं और तेरे नारे लगाता हुआ अपना गला कटवा दूं। ऐ इलाहुल आलमीन, मुझे सब्र और सुकून की तौफीक अता फरमा कि इस हक व बातिल के खूनी मारके में हौसला ना हारूं। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों की मोहब्बत तेरे रास्ते में हायल हो जाए। ऐ अहकमुल हाकिमीन, जो कुछ मेरे पास था मैं वो सब ले आया हूँ, अब तू इस कुर्बानी को कबूल कर लेना। रात आधी हो चुकी थी, हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। इमाम मजलूम ने सजदे से सर उठाया, मुसल्ले से उठे और शहजादा अली अकबर को फरमाया, बेटा जाओ और मैदान करबला का नक्शा देखाओ। शहजादा अली अकबर उठे और रात की खामोशी में मैदान करबला के चारों तरफ निगाह दौड़ाई। मैदान के बीच में देखा कि एक बुर्का पोश खातून अपने दामन से करबला की जमीन को साफ कर रही है। अली अकबर उस खातून के पास आए और पूछा, ऐ बीबी, तू कौन है और जमीन करबला को क्यों झाड़ती है? खातून खामोश रही। अली अकबर वापस आए तो इमाम आली मकाम ने पूछा, बेटा अली अकबर, मैदान करबला में कोई चीज नजर आई? अर्ज की, हाँ हुजूर, मैदान के बीच में एक बुर्कापोश खातून है जो अपनी चादर से जमीन को झाड़ रही है, मगर वो बोलती नहीं। इमाम मजलूम की आंखों से आंसू जारी हो गए। बेटे ने पूछा, बाबा जान, आप रो क्यों रहे हैं? तो इमाम पाक ने फरमाया, बेटा ये मेरी माँ फातिमा है जो अपनी चादर से जमीन करबला को इसलिए साफ कर रही है कि मेरे बेटे हुसैन के जिस्म पर कोई कंकर न चुभे, इसलिए कि इस मक्तल में लेटेगा सुबह लखते जिगर मेरा, इस मक्तल में लेटेगा सुबह लखते जिगर मेरा, यहाँ तड़पेगा विगोरो कफन नूरे नजर मेरा। मैदान करबला में सुबह की अजान के लिए शहजादा अली अकबर की सदाएं तौहीद और रिसालत बुलंद हुई। आपकी जानिशार जमात ने अपने इमाम बरहक के पीछे फज्र की नमाज अदा की। नमाज के बाद हजरत इमाम हुसैन ने एक बार फिर अपने साथियों से फरमाया कि आप लोगों ने जिस खुलूस व अकीदत से इस वक्त मेरा साथ दिया, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ, मगर मैं फिर आपको इजाजत देता हूँ कि मुझे अल्लाह के आसरे पर छोड़ के चले जाओ, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोग मौत के मुंह में जाएं, आपकी बीबियां बेवा हों, आपके बच्चे यतीम हों। मगर उस आखिरी वक्त भी जिस वक्त लश्कर यजीद जंग के लिए ललकार रहा था, हर एक को अपनी मौत नजर आ रही थी और 3 दिन से भूखे और प्यासे थे। तमाम ने मुत्तफिका तौर पर जवाब दिया, या हुसैन, हम भी मुसलमान हैं और हम भी आपके नाना मुस्तफा के शफाअत की उम्मीदवार हैं। हम एक फासिको और फाजिर की बैत नहीं कर सकते। सिर्फ आपके ही वजह से ही नहीं, बल्कि इस्लाम की इज्जत, दीन की आबरू और हक और हिदायत के परचम को बुलंद रखने के लिए हमें भी अपनी कुर्बानी पेश करने की इजाजत दीजिए। एक इंसान के लिए खौफ और हरास, धूप और प्यास, बाल बच्चों की मोहब्बत और अपनी जान का खतरा, इस दुनिया में इंतहाई मुसीबतें हो सकती हैं। कुरान पाक ने भी इन्हीं चीजों को राह हक को हिदायत के लिए आजमाइश करार किया, मगर इस मुकम्मल इंसान नहीं और मजलूम करबला के सामने ये तमाम चीजें एक एक करके मौजूद थी, लेकिन अगर वो भी राह हक से रूगर्दानी करके या
किसी मसलहत वक्त की ताबीर पर अमल करते हुए एक फासिक और फाजिर की और शरीयत के वागी की इताअत कर लेते तो फिर वो इन तमाम मुसीबतों से निजात पाकर बड़ी ही शान शौकत के साथ जिंदगी बसर करते। मगर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और क्यों नहीं किया? इसलिए कि यजीद की हुकूमत गैर इस्लामी थी और यजीद खुद इस्लामी सरहदों को तोड़ता था और फातिमा के लाल के लिए एक गैर इस्लामी हुकूमत को तस्लीम कर लेना, एक इस्लाम के वागी के आगे सर झुका देना खानदान नबूवत की तौहीन थी, शेर खुदा की तौहीन थी, फातिमा के दूध की तौहीन थी, नाना मुस्तफा के कंधों पर सवार होने की तौहीन थी। मैं हजरत इमाम हुसैन पर एतराज करने वालों से फिर कहती हूँ कि मैदान करबला में जो कुछ हुआ ये होना ही था, जरूर होना था, इसलिए कि उसकी खबर जुबान मुस्तफा से पहले ही मिल चुकी थी और यही नबिस्ताए तकदीर था जो नवासाए रसूल के लिए रोज़े अज़ल से ही लिखा जा चुका था। वरना जिस खुदा ने हजरत ज़बीउल्लाह के गले पर छुरी न चलने दी, जिसने हजरत खलीलुल्लाह पर आतिशे नमरूद को गुलजार बना दिया, जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर जिंदा उठा लिया, जिस खुदा ने मैदान बद्र में मुसलमानों की मदद के लिए आसमानों से फरिश्तों की फौज भेज दी और जिस खुदा ने हजरत इस्माइल की प्यास की शिद्दत में एड़ियां रगड़ने से आबे जमजम का चश्मा जारी कर दिया, मैदान करबला में भी वही खुदा था और आज उस मैदान में प्यास से हाँपने वाले बूढ़े, तड़पने वाले जवान, बिलकने वाले बच्चे उसी खलीलुल्लाह के नस्ल पाक से थे और शिद्दत प्यास से एड़ियां रगड़ने वाला मजलूम अली असगर उसी इस्माइल की औलाद से था और नेज़े पर कुरान पढ़ने वाला हुसैन भी मिल्लत इब्राहिमी का इमाम था। ये भी अगर चाहता तो आसमान से फरिश्तों की फौज आ सकती थी, तस्लीम कौसर की नहरों से नहर जमीन फाड़ कर निकल सकती थी, खाके करबला के जर्रे जर्रे से चश्मे फूट सकते थे और लश्कर यजीद को नेज़े की एक जुम्बिश से फना कर सकती थी। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि फरमान मुस्तफा झूठा ना हो जाए, नबिस्ताए तकदीर गलत ना हो जाए। और यही वजह है कि जब मैदान करबला में जाफर जिन ने अर्ज की कि आका अगर हुक्म हो तो लश्कर यजीद को एक दम में तबाह कर दूं, तो साबिर इमाम ने जवाब दिया था कि ए जाफर, तुम्हारी इस हमदर्दी का शुक्रिया और गमगुशारी का शुक्रिया, मगर मैं तुम्हारे हाथों अपने नाना की उम्मत को मरवा नहीं सकता, अपने नाना की उम्मत को गलत रास्ते पर जाने नहीं दे सकता। शेर खुदा का शेर फज्र की नमाज अदा करने के बाद मैदान करबला आया, आसमान की तरफ निगाह उठाई, आवाज आई, हुसैन बच जाए, तकदीर हूँ। हुसैन ने कहा आ जाए, शब्बीर हूँ। फिर आवाज आई, हुसैन मुझे खुदा ने भेजा है। हुसैन ने फरमाया मुझे मुस्तफा ने भेजा है। फिर आवाज आई, हुसैन मेरा नाम कज़ा है। हुसैन ने कहा मेरा बाप मुर्तजा है। फिर अक्ल बोली, हुसैन यजीद की बैत करने से शान शौकत मिलेगी, तख्तो ताज मिलेगा, दुनिया के खजाने मिलेंगे, आराम भी हाथ आएगा, राहत भी मिलेगी, दौलत भी, मदीने की हुकूमत भी मिलेगी। मगर इश्क ने पुकारा, हुसैन ये तो ठीक है, मगर तूने जो जरा आज अगर सब्र दिखाया, कौसर भी मिलेगा तुम्हें, जन्नत भी मिलेगी। अक्ल ने फिर कहा, हुसैन देखना कहीं घर का निजाम न बिगड़े। इश्क ने फिर आवाज दी, हुसैन मोहम्मद का इस्लाम न बिगड़े। अक्ल फिर बोली, हुसैन अकबर की लाश पर घोड़े दौड़ेंगे, असगर के हलक पर तीर पेवस्त होगा, अब्बास के बाजू कलम होंगे, आबिद के पांव में बेड़ियां पहनाई जाएंगी, बीबी ज़ैनब के खेमे जलाए जाएंगे, तुम्हारा सर भी नेज़े पर चढ़ाया जाएगा। अब भी वक्त है, बच जा। इश्क फिर पुकारा, हुसैन ये सब कुछ होगा, मगर तू राकिबे दौसे मुस्तफा है, नूरे निगाहे मुर्तजा है, लख्ते जिक्रे फातिमा ज़हरा है, तूने फातिमा का पाक दूध पिया है, इसलिए हुसैन चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की ताकत न कबूल कर। लश्कर यजीद से आवाज आई, हुसैन देर क्यों कर रहे हो? क्या यजीद की बैत के मुतालिक सोच रहे हो? अम्रशाद की उस बदजुबानी से हैदरी खून जोश में आ गया।
घोड़े को एड़ लगाई, तन्हा लश्करे आधा के सामने खड़े हो गए और एक ईमान अफरोज खुतबा इरशाद फरमाया, ऐ बातिल परिस्तों, ऐ दीन के दुश्मनों, सुनो, ये जो कुछ तुम कर रहे हो वो कौन है जिसके खून के प्यासे हो, उसकी शान क्या है? मेरे हस्बो नसब को याद करो, मैं उस रसूल का नवासा हूँ जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, मैं उस बाप का बेटा हूँ जो तुम्हारा खलीफा और इमाम था, मैं उस माँ का फर्जंद हूँ जिसकी फरिश्तों को शर्म थी, मेरा खानदान खानदान नबूवत है, मेरा घराना नूरानी पाक है, आयते तत्हीर में हमारी शान नाजिल हुई, मैं इमामुल अंबिया के दोस्त पर सवार होने वाला हुसैन हूँ, मैं महबूब खुदा की जुल्फों से खेलने वाला हुसैन हूँ, मेरा कोई कसूर है तो बताओ, मेरा कोई जुल्म है तो साबित करो, मेरा कोई गुनाह है तो बताओ, और फिर मैं खुद तो नहीं आया, तुम्हारे बुलाने पर आया हूँ, तुम्हारे सैकड़ों खत मेरे पास मौजूद हैं। फिर आपने एक एक का नाम लेकर मुखातिब किया और फरमाया कि दुनिया के लालच में आकर और यजीद के गैर इस्लामी दरबार से इनाम और इकराम के लालच में आकर तुम इतरत पैगंबर को हलाक करने का इरादा रखते हो, अब भी ये छोड़ दो और अपनी आखिरत को संभालो, मेरा खुदा तुम्हें जरूर माफ कर देगा। हाँ, तुम्हारी नजर में अगर मेरा कोई कसूर है तो वो ये है कि मैं यजीद की बैत नहीं करता और एक फासिक और फाजिर के आगे सर नहीं झुकाता, तो सुन लो, मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, भूख और प्यास बर्दाश्त कर लूंगा, अकबर और अली अस्कर को हंस के निशार कर दूंगा, खुद भी नेज़े पर चढ़ जाऊंगा, मगर फातिमा के लाल से ये उम्मीद न रखना कि भूख और प्यास, खौफ और हरास, कत्ल औलाद से डर से यजीद की बैत करवा लोगे। इमाम हुसैन ने यह खुतबा इत्माम हुज्जत के लिए पेश किया, बयान किया, ताकि लोगों को फिर कहने का मौका न हो कि इमाम हुसैन ने अपनी कद्र न बताई। जब लोग आपकी कद्र भूल जाएं तो फिर आप खुद अपनी कद्र उन्हें बताएं। ये हमें इमाम हुसैन ने सिखाया, क्योंकि इमाम हुसैन के नाना मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले खुद उनके खून के प्यासे हो गए, तो इस वजह से इमाम हुसैन ने उन्हें याद दिलाया कि तुम जिसके खून के प्यासे हो वो मेरा नाना है, तुम जिसको अपना खलीफा मान चुके थे वो मेरा बाबा अली मुर्तजा है, और तुम मेरे खून के प्यासे हो गए हो। ये सब कहने का मकसद ये था कि आगे चलकर इमाम हुसैन पर लोग आवाज न उठा सके। मेरे आका हुसैन पर ऐतराज करने वालों, जानते हो मैदान करबला में मुहर्रम की 10 तारीख को ये कौन खड़ा है और कहाँ खड़ा है, किन के सामने खड़ा है, किस लिए खड़ा है? अगर नहीं जानते तो सुनो, ये राकिब दौसे मुस्तफा हैं, ये राहत जाने मुर्तजा हैं, ये लख्त जिगरे फातिमा जहरा हैं, ये महबूब खुदा का प्यारा हुसैन है, ये अली के दिल का सहारा हुसैन है, ये फातिमा के आंखों का तारा हुसैन है, ये मिस्र और शाम के शाही महलों में नहीं, ये रूम और ईरान की सुनहरी तख्त पे नहीं, बल्कि इराक के बयाबान में खड़ा है, कूफा के रेगिस्तान में खड़ा है, करबला के मैदान में खड़ा है, और उनके सामने खड़ा है जो उसके नाना का कलमा पढ़ते हैं, जो अजान में उसके नाना का नाम लेने वाले हैं, और जो अपनी अपनी नमाजें कबूल कराने के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व अला आली मोहम्मद पढ़ते हैं, और ये इराक में खड़े हैं जो उसके बाप का दारुल खिलाफत था, और उस कूफा में खड़े हैं जिसकी जामा मस्जिद का इमाम उसका बाप था, उनके सामने खड़ा है जहां नमरूद ने हजरत खलीलुल्लाह के लिए चखा तैयार की थी, जहां हारूत मारूत को एक अंधेरे कुएं में लटकाया गया था, और जहां तूफान नूह की दरिया उबली थी, और ये आज अपने बच्चों को खून से दीन और ईमान की शमा जलाने के लिए खड़ा है, बातिल के मुकाबले में हक का अलम लहराने के लिए तैयार खड़ा है, नेज़े पर चढ़कर कुरान सुनाने के लिए खड़ा है। दुश्मन के लश्कर में एक खामोशी तारी थी, हर तरफ खामोशी छा गई, किसी में जवाब देने की हिम्मत न थी, इसलिए कि इमाम आली मकाम की उस इमार अफरोज तकरीर ने उनको लाजवाब कर दिया, और हकीकत अफरोज बाज ने उनकी जुबानें बंद कर दी। वो हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे, मगर नवासाए रसूल की उस पर तासीर और तकरीर ने हूर की आंखों से गफलत के पर्दे उठा दिए। उसने मोहब्बत भरी नजरों से इमाम हुसैन को देखा, हया आ गई,
सर झुका लिया, फिर निगाह उठाई, शर्मा गई, गर्दन झुका ली, तीसरी मर्तबा देखा तो सिमर ने पूछा, हूर हुसैन की तरफ बार बार क्यों देखते हो? कहा, जालिमों, मुझे हुसैन की पेशानी से मोहम्मद का नूर नजर आ रहा है। और फिर घोड़े को दौड़ाकर इमाम हुसैन के कदमों में आ गिरे। नवासाए रसूल ने उठाया और फरमाया, हूर क्यों आए हो? अर्ज की, आका, अपने मुक्तदी होने का हक अदा करने आया हूँ, अपने गुनाहों की माफी लेने को आया हूँ, अपने जुर्म से तौबा करने आया हूँ, आपके कदमों में जान देने आया हूँ। अर्ज की, या इमाम, कसूरवार हूँ, आपको घेर कर यहाँ लाया, गुनहगार हूँ, आपको यहाँ उतारा, मगर वल्लाह मेरे बहमो गुमान में भी ये ना था कि इनके दिल इतने सिहा हो चुके हैं कि आपको कत्ल करने के डर पे हो जाएंगे और आले रसूल पर पानी बंद कर देंगे। मजलूम करबला ने हूर को गले लगाया, फरमाया, खुदा तेरी तौबा कबूल करे। और फिर हजरत हूर ने यजीदी लश्कर की तरफ मुंह किया। फिर अम्र साद को मुखातिब करके फरमाया, लानत है तुझ पर कि तू दुनिया के लालच के बदले अपने दीन को बर्बाद कर रहा है और यजीद से इनाम पाने के खातिर बातिल की हिमायत करके अपनी आखिरत को खराब कर रहा है। अहले बैत की दुश्मनी में अपना नामाए आमाल सिहा कर रहा है। बाज आजा, अब भी वक्त है, उठ, दौड़ और इमाम हुसैन के कदम पकड़ ले और जिस तरह मैंने किया तू भी जहन्नुम के गढ़े से निकल कर जन्नत की फिजाओं में आ जा। ऐ यजीद की बातिल परिस्थिति का साथ देने वाले, ऐ बेदीनो, जिस हुसैन को तुमने, जिस फातिमा के लाल को तुमने सैकड़ों कासिद और खत भेजकर इसलिए बुलवाया कि हम आपकी बैत करेंगे, लेकिन अब जब वो आ गया है तो उसको यजीद की बैत के लिए मजबूर कर रहे हो। ये तुम्हारी वादा खिलाफी है, ये तुम्हारी बेवफाई है, ये तुम्हारी अहद सिकनी है। अब भी वक्त है, अपनी आंखों से गफलत के पर्दे उठाओ, अपने वादे को पूरा करते हुए बातिल का साथ छोड़कर हक के साथ मिल जाओ, खुदा तुम्हें भी माफ कर देगा। हूर अभी तकरीर कर ही रहे थे कि अम्र साद ने अपनी कमान उठाई, तीर चिल्ले पर चढ़ाया और ये कहते हुए तीर इमाम पाक की तरफ फेंका, लोगों तुम गवाह रहना, हुसैन पर पहला तीर मैंने चलाया है। खुदा की शान बेनियाजी के अम्र शाद हजरत शाद इब्न अबी वक्कास का बेटा है, जिन्होंने जंगे ओहद में सैयदुल मुरसलीन की हिफाजत के लिए और दीनो हक की रखवाली के लिए पहला तीर कुफ्फार के लश्कर की तरफ फेंका था। मगर आज उन्हीं का बेटा साद नवासाए रसूल को कत्ल करने के लिए और दीन हक की तबाही के लिए पहला तीर इमाम हुसैन की तरफ चलाता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कह गए कि जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा। मौजूद सामीन और सामियात, अगले बयान में यानी चौथे हिस्से में इंशाअल्लाहुल अजीज हजरत हूर की जानिसारी के मुतालिक आप लोगों को बताऊंगी और मैं ये चाहूंगी इस बयान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि आप भी सवाब दारैन के हकदार बन सकें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।